Hello friends, myself Arbab Khan, Assistant Professor Geography and HOD, Department of Geography, DK College, Dumrao. Friends, today we are going to discuss about life and work of great and eminent geographer Carl Ritter. Uh, this particular discussion is part of your BA Part 3 honors syllabus, which is paper 5th, section A, geographical thought. This particular class is very important for those students who are going to opt geographical thought as a paper in their BA Part 3 honors syllabus. So friends, we will discuss in detail about the work and the ideas of Carl Ritter, both in Hindi and in English, because most of my students are not too good in English, so I am going to explain in Hindi for them. So let's start about the Carl Ritter. So Carl Ritter was born on August 7, 1779, and he was a German geographer along with Alexander von Humboldt. Uh, we have discussed about Alexander von Humboldt in our previous class. So along with Humboldt, Carl Ritter is also considered as one of the founders of modern geography. And from 1825 until his death, he occupied the first chair in geography at the University of Berlin. He has viewed geography as empirical science. He maintained that its methodology required proceeding from one observation to the next, not from opinion or hypothesis to observation. Although he was convinced that there were laws of geography, he appeared to attach no particular importance to stabilizing them clearly. He stressed instead the importance of utilizing all the sciences to delineate the nature of geography, which was in his view unique. So friends, main theme of Ritter's work is I have summarized the main theme of Ritter's work in this particular slide, and this one is first one is unity in diversity. Second is use the regional approach rather than systematic studies. So Ritter has used regional approach in his work rather than systematic studies. Races by skin color and color by continent. So he was of the opinion that races can be identified by their skin color, and skin color can be identified by the continent. He was of teleological approach, so he believed in God. Regional geography was main theme of his book. In 1811, Geography of Europe, he published his first book in 1811. Erdekunde was his seminal work. He employed empirical method, also comparative method, and he is also considered as armchair geographer. So we are going to discuss all these things in detail and in Hindi one by one. So फ्रेंड्स, रिटर को भी हम्बोल्ट के साथ वर्तमान वैज्ञानिक भूगोल का संस्थापक माना जाता है। वह उद्देश्यवादी और ईश्वर में प्रबल विश्वास करने वाला था, इसीलिए हम लोगों ने जो टीलियोलॉजिकल अप्रोच की बात की पिछली स्लाइड में, वो इसीलिए की क्योंकि वो ईश्वर में प्रबल विश्वास करता था। उसे आर्म चेयर भूगोलवेत्ता भी कहा जाता था। तो कार्ल रिटर को आर्म चेयर भूगोलवेत्ता कहने के पीछे मेन तर्क ये है कि हम्बोल्ट के अपोजिट रिटर ने बहुत ज़्यादा यात्राएं नहीं की, वो बहुत ज़्यादा अपने क्षेत्रों में घूमे नहीं, और उन्होंने जो भी किताबें लिखी हैं, जो भी चीज़ें लिखी, वो दूसरों के संस्मरण पे लिखा और अपना आइडियाज़ डेवलप किया अपने क्लास में बैठ के, अपनी आर्म चेयर पे बैठ के, इसलिए उनको आर्म चेयर जोग्राफर कहा जाता है। रिटर ने ही विविधता में एकता या यूनिटी इन डाइवर्सिटी का विचार जो है उसको विकसित किया था, और रिटर ने भूगोल को अर्धकुंडे अर्थात भू विज्ञान माना था। रिटर हमेशा भूगोल को भू का विज्ञान कहते थे, जिसको उन्होंने अर्धकुंडे नाम दिया था।
और रिटर के भौगोलिक अध्ययन की पद्धति को निगमनात्मक पद्धति या डिडक्टिव मेथड कहा जा सकता है। उसके अलावा इन्होंने अपनी जो सबसे जो प्रसिद्ध बुक थी उसको एर्डकुंडे और लैंडर कुंडे या प्रादेशिक भूगोल जो है वो कहा जाता है। सो इट वॉज एट द यूनिवर्सिटी ऑफ गॉटिंगटन दैट रिटर पब्लिश द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ अर्डकुंडे इन 1870। तो 1817 में ही उन्होंने सबसे पहले अर्डकुंडे का जो पहला वॉल्यूम था वो पब्लिश किया हुआ था। इनका जो पहला वॉल्यूम था वो अफ्रीका और एशिया से डील करता था, और एशिया का जो सेकंड वॉल्यूम था वो 1818 में आया। So the publication of these two volumes in 1817 and 1818 made a tremendous impression in the contemporary academic world, and he was recognized as the reformer of geography, as the master who first brought the field of geography into science. तो दोस्तों जैसे ही इनका ये वर्क पब्लिश हुआ एडकुंडे, पूरे जोग्राफिकल फ्रेटर्निटी में तहलका मच गया। लोगों ने बहुत ज़्यादा इसको अप्रिशिएट किया, और लोगों ने फर्स्ट टाइम ये कहा कि ये रिटर ही हैं जिन्होंने जोग्राफ़ी को साइंस की कैटेगरी में लाके खड़ा कर दिया। इससे पहले लोगों का ये कहना था कि जोग्राफ़ी बेसिकली एक आर्ट्स का डिसिप्लिन है, साइंस इसका लेने देना नहीं, लेकिन रिटर की वजह से जोग्राफ़ी जो है वो साइंस के डिसिप्लिन में आ गया। खुद रिटर ने कहा है कि एर्डकुंडे के पब्लिश होने के बाद रिटर का अपना खुद का जो अप्रोच था वो चेंज हो गया, और उन्होंने ये कहा कि he claimed that its distinctive theme was a comparative one which aimed at showing the connection between history and nature, both organic and inorganic. उन्होंने कहा कि उन्होंने हिस्ट्री और नेचर के बीच में कनेक्शन जो है अपनी इस वॉल्यूम में दिखाया है, जिसमें ऑर्गेनिक भी एलिमेंट्स हैं और इनऑर्गेनिक भी एलिमेंट्स हैं। इसीलिए रिटर जो थे उनका निश्चयवादी चिंतन था, और ये मानना था कि भौगोलिक विविधता के द्वारा ही ऐतिहासिक विविधता उत्पन्न होती है। मतलब अगर किसी प्रदेश में भौगोलिक विविधता नहीं हो तो वो प्रदेश ऐतिहासिक रूप से भी विविध नहीं होगा। ये रिटर का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था, और इसी प्रादेशिक अध्ययन के लिए रिटर ने लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। लैंडर कुंडे या प्रादेशिक भूगोल, और इसी वजह से रिटर को प्रादेशिक भूगोल का जनक भी कहा जाता है। Since 1831 he had devoted himself fully to the completion of Erdogan. Between 1832 and 1838 Ritter completed 6 more volumes, and between 1838 and 1859 11 more volumes were completed. Yet the 19 volumes of Erdogan he actually covered Africa and parts of Asia. मतलब पूरे 19 वॉल्यूम में रिटर ने सिर्फ एशिया और अफ्रीका को ही कवर किया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एक्सटेंसिव उन्होंने रिसर्च किया, और कितना एक्सटेंसिव उन्होंने इन सब जो क्षेत्र है उनके बारे में लिखा। अनडाउटली रिटर गेव टू ज्योग्राफी इट्स सिस्टमैटिक फ्रेम which remained valid for the successive period of modern geography. The classical period in the development of modern geography came to an end with the death of both Humboldt and Ritter in 1859. मतलब हम्बोल्ट और रिटर दोनों के देहांत के बाद जो क्लासिकल पीरियड ज्योग्राफी का कहा जा सकता है मॉडर्न ज्योग्राफी का, वो एक तरीके से ख़त्म हो गया। यहाँ हम थोड़ी बात करेंगे अर्डकुंडे के बारे में, जिसका कि उन्होंने 21 वॉल्यूम जो है 19 पार्ट में डिवाइड करके जो है पब्लिश किया था, और इसको रफली हम 6 सेक्शंस में बांट सकते हैं। पहला सेक्शन अफ्रीका का है जो 1822 में उन्होंने पब्लिश किया था। दूसरा सेक्शन ईस्ट एशिया का है, पूर्वी एशिया का, जो कि वॉल्यूम 2 से 6 के बीच में है। ये 1818 से 1836 मतलब 18 साल के अंदर में उन्होंने पब्लिश किया था। तीसरा सेक्शन पश्चिम एशिया का है, वेस्ट एशिया का, जिसको वॉल्यूम 7 और से वॉल्यूम 7, 8 और वॉल्यूम 9 में डिवाइड किया जाता है। ये 1837 से 1844 में पब्लिश हुआ था। फोर्थ सेक्शन जो है वो अरबिया का है, जो 12 और 13 वॉल्यूम में है। इसको 1846 और 1847 में पब्लिश किया था।
उसके बाद 14 और से लेकर 17 तक सिनाई पेनिनसुला के बारे में, लास्ट एशिया माइनर के बारे में है 18 और 1900 के 1852 में कंप्लीट हुआ। सो रिटर्स मास्टर वर्क द 19 वॉल्यूम टाई एडकुंडे या जोग्राफी इन रिलेशन टू नेचर एंड द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जो कि 1816 से लेकर 1859 के बीच में लिखा गया था। इट वॉज डेवलप्ड एट prodigious length. The theme of the influence of the physical environment on human activity. It is an encyclopedia of geographical lore. Ritter unfolded and established the treatment of geography as a study and a science. His statement was endorsed and adopted by all the geographers. तो जिस तरीके से जोग्राफी का ट्रीटमेंट रिटर ने किया साइंस के सब्जेक्ट की तरह, सारे जो जोग्राफर्स थे उन्होंने उसको इंडोर्स किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसको एडॉप्ट भी किया अपने जो अपने वर्क है उसमें। तो रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए जो सबसे पहली विधि अपनाई वो है एम्पिरिकल मेथड, मतलब अनुभविक विधि। दूसरी विधि उन्होंने अपनाई कंपैरेटिव मेथड। इसीलिए उन्होंने अपनी जो पुस्तक है एडकुंडे उसका उपशीर्षक रखा सामान्य तुलनात्मक भूगोल या जनरल कंपैरेटिव ज्योग्राफी। उसके बाद जो तीसरी विधि उनकी थी वो विश्लेषण और संश्लेषण विधि थी, जिसको एनालिसिस एंड सिंथेसिस मेथड कहते हैं, और लास्ट में थी कार्टोग्राफिकल मेथड। तो रिटर ने फाइनली ये कहा कि पृथ्वी मनुष्य के लिए एवं मनुष्य पृथ्वी के लिए बना है, मतलब हम अगर पृथ्वी के लिए हैं तो पृथ्वी भी हमारे लिए है, लेकिन हम दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। और ये आप देखिए कि हम्बोल्ट और रिटर दोनों की ही मृत्यु 1859 में हुई, और हम्बोल्ट और रिटर में बहुत ही समानता थी। जैसे दोनों ही प्रकृति की एकता में विश्वास करते थे। इन दोनों विद्वानों ने भौगोलिक अध्ययन में मानव के महत्व को स्वीकार किया था, और दोनों ही भौगोलिक अध्ययन में अनुभविक विधि को महत्वपूर्ण मानते थे। लेकिन दोनों में जो डिफरेंस था कि हम्बोल्ट की जो ट्रेनिंग हुई थी या हम्बोल्ट की जो शिक्षा हुई थी वो प्राकृतिक विज्ञान में हुई थी, लेकिन रिटर की जो शिक्षा थी वो दर्शन शास्त्र और इतिहास में हुई थी। तो रिटर का जो अप्रोच था ज्योग्राफी के प्रति वो फिलॉसफी और हिस्ट्री के ज़्यादा नज़दीक था। इनकी जो एडकुंडे जो किताब है उन्होंने उसमें हिस्टोरिकल और फिलॉसफिकल अप्रोच रखा हुआ है। हम्बोल्ट जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक विचारधारा को मानते थे, और ईश्वरीय उद्देश्य में हम्बोल्ट का कोई बहुत ज़्यादा जो मतलब विश्वास है वो नहीं था। लेकिन रिटर जो है, जो कि उनका बैकग्राउंड फिलॉसफिकल था, तो ईश्वरीय सत्ता में उनकी मतलब अपूर्ण और अटूट आस्था थी। तो जो भी हो, मतलब रिटर और हम्बोल्ट दोनों अपने समय के फाउंडर कहा जा सकता है मॉडर्न ज्योग्राफी के, और दोनों ने ही ज्योग्राफी का जो आज हमारे सामने जो प्रेजेंट जो स्वरूप है उसको डेवलप करने में बहुत योगदान दिया। तो दोस्तों, आशा है कि इस लेक्चर से आपको बहुत आसानी हुई होगी समझने में कार्ल रिटर और उनके एडकुंडे के बारे में। अगले लेक्चर में हम और आगे के ज्योग्राफर्स के बारे में डिस्कस करेंगे।